اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے نیٹ پیپر لیک معاملے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے دور میں کس طریقے سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس معاملے میں خبر آ رہی ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں مہاراشٹر کا کنیکشن، یعنی اب گجرات ہوتے ہوئے یہ کنیکشن مہاراشٹر تک پہنچ گیا۔ ناندیڑ ATS نے کارروائی کی، کوچنگ سینٹر چلانے والے 2 اساتذہ کو حراست میں لے لیا، پوچھ تاچھ ابھی جاری ہے۔ سنجے جادھو اور جلیل عمر خان پٹھان، اس معاملے میں اب تک 20 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہے۔ اس دوران گزشتہ کل ہونے والے نیٹ PG کے داخلے امتحان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خیر، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ کانگریس نے اس کو زبردست انداز میں ملک گیر پیمانے پر اٹھایا ہے۔ کانگریس کے ادھیکش ملک ارجن کھڑگے کا بھی بیان آیا ہے کہ پیپر لیک اور پھر اسے کینسل کر دینا یا ملتوی کر دینا، یہ BJP حکومت کے کام کرنے کا انداز بن گیا ہے۔ وہیں پر محترمہ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بچوں کا مستقبل، چھاتر چھاتراؤں کا، پڑھنے لکھنے والے بچوں کا مستقبل لالچی اور نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نیٹ پیپر لیک کا تار بہار، گجرات ہوتے ہوئے اب مہاراشٹر پہنچا، اور مہاراشٹر میں بھی 2 ٹیچروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس ہوگا۔ ہنگامے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی سمیت 9 منتخب اراکین پارلیمنٹ کی حلف برداری ہوگی اور حکومت اکثریت ثابت کرے گی۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد آج 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس شروع ہوگا۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں لوک سبھا میں حلف لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی انتخابات ہوں گے۔ ساتھ ہی پریزیڈنٹ آف انڈیا درپدی مرمو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گی۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد نئی حکومت بنی، جس کے بعد اب آج پہلا اجلاس ہوگا۔ اس 18ویں لوک سبھا میں NDA کو 293 سیٹوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہے۔ اس میں BJP کے پاس 240 سیٹیں ہیں جو کہ اکثریت کے اعداد و شمار سے کم ہیں۔ اپوزیشن پارٹی انڈیا الائنس کے پاس 234 سیٹیں ہیں، جن میں سے کانگریس کے پاس 99 سیٹیں ہیں۔
आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में एक फैसला ऐसा आया था कि 1563 स्टूडेंट्स फिर एग्जाम देंगे, लेकिन खबरें आ रही है कि नीट यूजी इम्तिहान से 750 तलबा यानी टोटल आधे तलबा एब्सेंट रहे, गैर हाजिर रहे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब एक्टिव हो गई है। पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नवादा में टीम पर हमला होने की खबरें भी आ रही है। 5 मई को हुई नीट इम्तिहान के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के लिए गुज़िश्ता कल यानी इतवार को इम्तिहान हुआ। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के दरमियान शेड्यूल किया गया था। 1563 में से कुल 813 उम्मीदवार ही इम्तिहान में शामिल हुए, यानी 750 उम्मीदवार एग्जाम देने नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहान सेंटर बनाया गया, वो दोनों भी नहीं पहुंचे। नाज़रीन, दिल्ली के वजीर आला मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल में बंद वजीर आला अरविंद जी केजरीवाल ने गुज़िश्ता कल यानी 23 जून बरोज इतवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत पर लगाई गई रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के वकीला ने गुज़िश्ता कल 23 जून की सुबह समाअत की अपील की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। अदालत ने केजरीवाल की जमानत देने से पहले उन पर कुछ शराइत भी आयद की। जज ने केजरीवाल को हिदायत दी थी कि वो तहकीकात में रुकावट न डालें और न ही गवाहों को मुतासिर करने की कोशिश करें। इसके बाद ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें वजीर आला केजरीवाल को दी गई जमानत को चैलेंज किया गया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के हुक्म पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, संजीव भट्ट और उमर खालिद को रिहा करने का डिमांड और मुतालबा किया है एक्स जस्टिस मार्कंडे काटजू ने। सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुला खत लिखा। भीमा कोरेगांव के मुलजिमीन, इंसानी हुकूक के कारकुनों और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में कैद तमाम बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई की उन्होंने अपने खत के जरिए से दरखास्त की है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज मार्कंडे काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखा है और खत में उन्होंने साबिक IPS संजीव भट्ट, उमर खालिद, भीमा कोरेगांव वाक़े के मुलजिम, इंसानी हुकूक के कारकुनों और अजला में कैद तमाम मुसलमानों की रिहाई का डिमांड किया है। जस्टिस काटजू ने खत में लिखा है कि मैं एहतराम के साथ आपसे अपील करता हूं कि अदालत जेल में कुछ लोगों के मुकदमात पर नजर सानी करे। इन उमूर के मुतालिक मेरा मानना है कि सियासी इंतकाम और राजनीतिक बदले की वजह से इन्हें गलत तरीके से कैद किया गया है। अदालत उन पर लगाए गए झूठे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी करे। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला मोरेना के एक गांव में गाय का गोश्त बरामद होने के बाद गिरफ्तार 2 अफराद पर NSA लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुज़िश्ता कल यानी इतवार के दिन ये बात बताई। ज़बीहा गौ की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जुमा की रात जिले के मौजे नूराबाद की बंगाली कॉलोनी के एक मकान से बीफ और गाय की खाल बरामद की थी। एक औहदेदार ने यह बात बताई। एक देहाती गुर्जर ने शिकायत की थी कि बाद अफराद ने गाय ज़बह किया और जब उसने उसकी मुखालिफत की तो उस पर हमला कर दिया गया। यह वाक़या जुमे की शाम का बताया जा रहा है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आदर्श शुक्ला ने यह बात बताई। पुलिस ने उसके बाद हड्डियों और बीफ से भरे 2 थैले और गाय की एक खाल मुलजिमीन के मकान से बरामद की और 4 अफराद बशमूल 2 खवातीन को जुमा के दिन गिरफ्तार किया गया। एक कमसिन लड़के को भी हिरासत में लिया गया है। नाज़रीन, हज का सीजन खत्म हो गया।
5 दिनों का हज बैतुल्लाह का फरीज़ा लाखों अल्लाह के बंदों ने पूरा कर लिया। अब अल्लाह जिसे चाहता है उसे बुला लेता है। खबर आ रही है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा के टेलीविज़न पर नश्र होने वाले शो द कपिल शर्मा शो में उनकी दादी का किरदार निभाने वाले मुस्लिम अदाकार अली असगर ने भी इस साल फरीज़ा हज अदा किया। अली असगर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी की जिसमें उन्हें एहराम बांधे क्लॉक टावर के सामने देखा जा सकता है। पोस्ट के कैप्शन में अली असगर ने लिखा कि अल्लाह की टाइमिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। इससे पहले अली असगर ने खाने काबा की तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा था, या अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा। मैं आपको बता दूं कि एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के मशहूर ड्रामे कहानी घर घर की में कमल अग्रवाल का किरदार निभाया था अली असगर ने, और ऐसे ही ड्रामा सीरीज FIR में इंस्पेक्टर राज आर्यन का किरदार भी अली असगर ने निभाया है। अब उन्होंने फरीज़ा हज अदा कर लिया है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए और गंदी दुनिया से उन्हें बिल्कुल अच्छी दुनिया में कदम रखने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना हिंदुस्तान के दौरे पर आई थी और अब खबरें आ रही है कि इस मौके पर बांग्लादेश को बड़ा तोहफा हिंदुस्तान की जानिब से दिया गया और खबर है कि अब हिंदुस्तान मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए। वजीर आजम शेख हसीना के साथ 2 तरफा बातचीत के बाद PM मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है, यानी बांग्लादेश को बड़ा तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहूलत मेडिकल वीज़ा की आने वाले लोगों के लिए सहूलत शुरू की जाएगी। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए मेडिकल वीज़ा की सहूलत शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के शिमाल मगरबी इलाके के लोगों की सहूलत के लिए रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने की पहल की गई। PM मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती शराकतदार है, पार्टनर है और हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शकील ने बताया कि बीजेपी लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली है। इंदौर के बीजेपी युवा मोर्चा के शहर नायब सदर मोनू कल्याणी का इंदौर में गुज़िश्ता कल यानी 23 जून को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मोनू कल्याणी मध्य प्रदेश हुकूमत में काबीनी वजीर कैलाश विजय वर्गीय का बहुत ही करीबी था। यह वाकया शहर के MG रोड थाने के इलाके चमनबाग में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से पीयूष और अर्जुन ने मोनू कल्याणी को गोली मारी है। फिलहाल दोनों मुल्जिमीन फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। प्रज्वल रेवन्ना, इस रेपिस्ट को कौन नहीं जानता, और भारत ये भी जानता है कि इस रेपिस्ट का प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे, जिस पर पूरी दुनिया ने, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने बीजेपी पर थूका था। और नरेंद्र मोदी की इस घटिया हरकत की वजह से उनको इसका सिला भी भारत के हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर दे दिया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। खैर, अब और ज्यादा अफसोसनाक खबर आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना का भाई सूरज रेवन्ना ये भी ऐसा ही निकला। और अजीब खबर आ रही है कि सूरज रेवन्ना हम जिन्स परस्ती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने इतवार को कहा कि JDS MLA सूरज रेवन्ना के खिलाफ पार्टी के एक मर्द कारकुन के मुबैना जिनसी इस्तेसाल की तहकीकात CID को सौंप दी गई। साबिक मेंबर पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को हासन में गैर फितरी
जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सूरज रेवन्ना के खिलाफ हफ्ते को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुय्यना तौर पर चंद रोज पहले पार्टी के ही एक कारकुन को इसने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। इस मामले में सूरज रेवन्ना के खिलाफ गैर फितरी जुर्म समेत IPC के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सूरज रेवन्ना के खिलाफ केस की तफ्तीश CID को सौंप दी गई है। यानी अब अजीब माहौल है कि उधर प्रज्वल रेवन्ना जिसने हजारों औरतों की इज्जत से खेला और वहीं पर उसका ये दूसरा भाई सूरज रेवन्ना ये हम जिन्स परस्त निकला। यानी प्रज्वल रेवन्ना से महिलाएं महफूज नहीं और सूरज रेवन्ना से मर्द महफूज नहीं। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट